خدا جو آپ نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا، رب الفاظ کا ہمارے دن ہمارے لیے جو تمہیں مقدس ٹھہرایا ہے، میں آپ کا شکر کرتی ہوں۔ رب الفاظ نام کر میں آپ کا شکر کرتی ہوں، اور جتنے لوگ آج خدا میری حاضری میں آئے ہیں، میں سب کے لیے بھی تیرا شکر کرتی ہوں کہ خدا تیرا فضل ہے کہ تو اپنی حاضری میں اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں، میں آپ کا شکر کرتی ہوں۔ اور خدا خاص کر اپنی میرے نبی کے لیے، میری وکیلہ کے لیے، نام اوسط کے لیے، کہ خدا محمد کے لیے میں آپ کا شکر کرتی ہوں۔ اے خدا خاص نام کا آج بہت سے لوگ اس سے دور ہے، میری حاضری میں نہ آ سکے، کیونکہ خدا تم تیرا اوپر فضل نہ تھا، خدا تیرا گھروں کو فضل کیے تیری حضوری میں آ سکے، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ ہم تیرے قدامت ہے، خدا ہم پر شکر کرو کی شخصیت ہوتی ہے۔ آج میرے لوگ تیری شفقت ان پر ہو، میرا ہاتھ ان کے اوپر ہو، اور خدا میرے نام کی زندگیوں میں جلال پاتا رہے۔ اے بلا خواہش خدا اپنے لوگوں پر جو رحم کرنے میں قادر ہے، رحیم و کریم ہے، شفقت میں کرنے والے خدا ہے۔ اے بلا خواہش خدا میں آپ کے نام کو رہتی ہوں، آپ کے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اے بلا خواہش خدا میں آپ کے نام کی لیے کرتی ہوں، آپ سے لیتے ہو اول اور آخر خدا انتہا ہے، اور اول سے خدا ہے۔ اے بلا خواہش خدا میں آپ کے نام کو ستائش کرتی ہوں۔ اے بلا خواہش خدا آپ جو کہتے ہیں میں شفقت میں گلی والے خدا میں آپ کے نام کو جلا دیتی ہوں، اور ہر ایونٹ سے ہر شکاری منصوبے سے محفوظ رکھا ہے، میں آپ کا شکر کرتی ہوں اور آپ کے نام کو خدا میں جلا دیتی ہوں۔ اے بلا خواہش آج کے لوگ تیری مزدوری میں اٹھے ہیں، اور تیری شکر گزاری کے لیے ہم تیری شکر گزاری آج سے پسند ہے، کیونکہ خدا مجھے لوگوں کی شکر گزاری پسند ہے۔ اے رب الفاظ خدا میں آپ کا شکر کرتی ہوں، آپ کے نام کو جلال دیتی ہوں۔ آج ہم جلال سے جلال و کمال سے کمال کی طرف لے کر چاہتے ہیں، میں آپ کا شکر کرتی ہوں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہم تو دعا کریں گے آج کے مقدس کے لیے کہ خدا آج کا جو کلام ہے میرے لیے باعث برکت ہو، میرے گھرانے کے لیے، اور یہ نئے سال کا پہلے سنڈے ہے، خدا اس سنڈے سے آنے والے سنڈے جتنے بھی سنڈے ہیں، خدا ہر دن میری گواہی ہوئی یسوع کے نام سے، اپنے ہاتھوں میں ہوگا کہ یسوع کے نام سے خدا ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ نئے سال کا پہلا اتوار ہے، خدا ہر آنے والے اتوار میں خدا ہم میں گواہی دیتا ہو، اور خدا ہم تیرے نام کو جلال دے۔ دعا کریں گے سب لوگ۔ اعتراض بانی ماں رب الفاظ نام خدا میں دعا کرتی ہوں آج کی سنڈے کے لیے کہ خدا ہر آنے والے سنڈے میں خدا ہم اپنے لوگوں کو گواہی دی، خدا ہم سے کلام کی ذریعے سے، خدا تیرا کلام جو دو دائیں تلوار سے بھی تیز ہے، جو بند بند برے برے کو جدا کر دیتا ہے۔ اے رب الفاظ تیرا کلام جو دو دائیں تلوار سے تیز ہے، اے رب الفاظ آپ کے منصوبے جو آپ ہمارے لیے رکھتے ہیں اس سال وہ پورے ہو۔ اے رب الفاظ کی کلام کی وہ باتیں جو آپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جو موت سے ہمارے لیے رکھے ہیں، ان کو ہم اسی سال نصیب کریں۔ اے رب الفاظ اور آپ کے نام کو ہم جلا دیتے ہیں۔ اے رب الفاظ خدا ہر دن تو ہمیں موقع دے، ہر دن ہمارے زندگیوں میں گواہی ہو، اور خدا ہم تیرے نام میں آگے بڑھتے جائیں۔ اے رب الفاظ خدا کیونکہ خدا ہم گواہی دینا یسوع مسیح کے نام کی، خدا کی یسوع مسیح اور آپ جو ہمیں ہر دن کے لیے خدا مہیا کرتے ہیں۔ اے رب الفاظ خدا زندگی کے لیے، زندگی کی سانسوں کے لیے بھی ہماری گواہی ہو کہ خدا نے ہمارے حادثے سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچا کے رکھا ہے، ہم آپ کے نام کی گواہی دیں۔ اے رب الفاظ خدا تو اپنے لوگوں کے خیال و ارادوں کو جانتا ہے۔ اے رب الفاظ ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تیرے لوگوں کے اندر مثبت سوچ ہے، مثبت خیالات ہے، اور تاکہ تیرے نام کی گواہی دے سکے، اور رب الفاظ سے اپنے لوگوں کو تسلی دے کر نہ دے، جو شکستہ دی ہے وہ تسلی پاتے جائے۔ اے خدا جو بیمار ہے وہ شفا پاتے جائے۔ آج کا کلام آپ کے بازوؤں کو مضبوط کرے، آپ کی ٹانگوں کو مضبوط کرے، آپ کے ذہن کو کھولے، آپ کو حکمت سے مالا مال کرے۔ خدا نیو فریش انوائنٹنگ اس 2021 کے لیے آپ کی لائف پر ریلیز کرے، اور جو کوئی بھی پرانی چیزیں ہیں آج کے کلام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ ہاللیلویہ۔ Sit down and never go down. Once again, I wish you Happy New Year. ایک بار پھر میں آپ سب کو Happy New Year wish کرتا ہوں۔ Welcome in 2021.
2021 में एफाता के तमाम सन्स एंड डॉटर को मैं वेलकम करता हूँ। अपने साथ वाले को हाथ में बोले आई वेलकम यू। मैं खुश हूं कि तो खुदा उनके घर में आया। जैसे कि मैंने न्यू ईयर वाले दिन मॉर्निंग की सर्विस में आपको बताया कि हमारे डैडी ने, हमारे जनरल ओवरसीयर ने खुदा के हुजूर टाइम स्पेंड करके जो वर्ड ऑफ गॉड खुदा से डाउनलोड किया, वो आपके लिए खुशखबरी है कि 2021 जो है ये एफाता के सन्स एंड डॉटर के लिए एडवांसमेंट का साल है, तरक्की का साल है, आगे बढ़ने का साल है। और उसी हवाले से आज का मेरा मैसेज है कि क्या 4 एलिमेंट है जो दरकार है आपको आगे बढ़ने के लिए, एडवांस होने के लिए, तरक्की के लिए। 4 वो कौन से एलिमेंट है? अगर वो 4 मेजर एलिमेंट आपकी लाइफ में नहीं है, आप अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपनी हेल्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ एलिमेंट मैंने न्यू ईयर वाले दिन बताए, लेकिन आज वाले उनसे मुख्तलिफ है, उनसे मुनफरिद है। और आज मैं कुछ डीपर लेवल पर जाऊंगा। और आज की सर्विस के बाद इस न्यू ईयर की जो ये साल एडवांसमेंट का साल है, माइंड में रख ले। जब भी मैन ऑफ गॉड स्क्रीन पर आता है, जब भी मैन ऑफ गॉड सीन पर आता है, जितनी मर्जी कियोस हो, जितनी मर्जी सुनसानी, वीरानी, अंधेरा हो, तारीकी हो, उसका वर्ड सिचुएशन को चैलेंज करता है। मर्द खुदा एलिया ने कहा कि मैंने कसरत की बारिश की आवाज सुनी है। I have heard the sound of an abundant rain। उस वक्त 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। तो क्या था? चैलेंज था। लोगों ने कैसे होगी? 3.5 साल इसी नबी ने, शेर प्रॉफिट ने प्रोफेसी की है और कोई रेन नहीं हुई। अब कैसे होगी? क्योंकि मुमकिन है 3.5 साल घास जल गई, फसलें बर्बाद होगी, जानवर मर गए, लोग मर गए, डिजास्टर हो गया, तबाही हो गई। लेकिन कैसे होगा? चैलेंज था वो वर्ल्ड। ठीक इसी तरह जो क्राइसिस, जो ड्रामा, जो डिप्रेशन, जो लॉस, जो डैमेज आपने 2020 में फेस किया है, शायद ये वर्ड मेरे फादर का आपके लिए चैलेंज हो कि कैसे तरक्की का साथ, कैसे। लेकिन इसी तरह मर्द खुदा अलीशा ने भी कलाम किया कि कल फाटक में अनाज, गेहूं सस्ते दामों बिकेगा। बादशाह के मुशीर ने कहा कि अगर खुदा आसमान की खिड़कियां, दरवाजे भी खोल दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा तू देखेगा पर खा ना पाएगा, क्योंकि तूने ईमान नहीं रखा। इसी तरह एडवांसमेंट, तरक्की, आगे बढ़ेंगे वही लोग जो बिलीव करेंगे मैन ऑफ गॉड के वर्ड को। हालेलुया। आज 4 पावरफुल टूल मैं आपको बता रहा हूं। ये मैसेज सुनकर कानों से निकालने वाला नहीं है, इंप्लीमेंट करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। ये 4 चीजों को ज़हननशीन कर लेना है। कैसे? अब आगे बढ़ेंगे। जो आए इस ईयर के लिए खुदावंद ने दी है फाता के तमाम सन्स एंड डॉटर के लिए। पहले मैं वो पढ़ूंगा, कुछ लोगों ने मिस किया है, तो फिर उसके बाद मैं 4 एलिमेंट शेयर करूंगा, 4 टूल शेयर करूंगा। क्या दरकार है आपको इस साल अपनी फैमिली में तरक्की करने के लिए, अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस में तरक्की करने के लिए? कितने रेडी आगे बढ़ने के लिए? ईयर ऑफ एडवांसमेंट, आगे बढ़ने का साल है। अब मेन आयत पढ़ेंगे जो खुदावंद ने दी है फाता की तमाम कॉन्ग्रीगेशन के लिए। खरूज उसका 14वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत। एक्सोडस 14 खरूज 14 बाब 15वीं और 16वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? और खुदावंद ने अपोस्टल जॉन मंगीरा से कहा कि तुम क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? एफाता से कह कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रही?
एफाता से क्या कि वो आप एफाता के लोग नहीं हैं। अपने साथ वाले को क्या आगे बढ़े। और खुदावन ने मूसा से कहा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, पर इस्राएल से क्या कि वो आगे बढ़े। और उसने अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और वो उसे दो हिस्से कर दिया। पर इस्राएल समंदर के बीच से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। बोले आमीन। कितने भी चैलेंज आए, कितने भी वायरस आए, कितने भी कियास आए, आप उस पर से चलकर गुजर जाएंगे। समझ नहीं है आपको। आमीन आपका छोटा है, जितना छोटा आमीन है उतनी बरकत होगी, जितना बुलंद आमीन है उतनी बड़ी बरकत है। हालेलुया। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ईयर ऑफ एडवांसमेंट। एफाता जस्ट एक छोटा सा चर्च नहीं है, छोटी सी मिनिस्ट्री नहीं है, ये मूवमेंट है। जब मूवमेंट होती है और वो बढ़ती है, एक वक्त वो मोमेंटम बन जाता है। आप 2-4 लोगों की गैदरिंग रोक सकते हैं, आप 2-4 लोगों का क्राउड रोक सकते हैं, लेकिन जब एक मैन मैसेज के साथ आए और वो मैसेज इतना बन जाए कि वो मूवमेंट बन जाए, मूवमेंट जब बढ़ती है तो मोमेंटम बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत मोमेंटम को रोक नहीं सकती। तो आप एफाता एक मोमेंटम बन गए, आप बढ़ने वाले आगे। हालेलुया। तो खुदावन ने कलाम किया आगे बढ़ो, मीन एडवांस। खुदा नहीं चाहता कि आप एक जगह स्टक हो, आपकी मैरिज एक जगह रह जाए, आपकी फैमिली एक जगह रह जाए, आपके बच्चे एक जगह जाए। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है आज का इस्राएल आप है, आज के उसके बेटे बेटियां, उसकी कांग्रेगेशन आप है। खुदा नहीं चाहता कि आप एक ही जगह रहे, कैद में रहे, नाकामी में रहे, फेलियर में रहे, गुर्बत में रहे। खुदा चाहता आप आगे बढ़े। अपने साथ वाले को क्या आगे बढ़ो। क्या टूल रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए। लास्ट मैसेज में मैंने 9 चीजें बताई, आज उनको नहीं टच करूंगा, आज डिफरेंट है, उससे हायर लेवल की बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज जो है आइडेंटिटी है, आपकी पहचान, आपकी शनाख्त। पहला पॉइंट है डू यू नो योर आइडेंटिटी। क्या आप अपनी पहचान जानते हैं? आप कौन है? हु आर यू। अपने आप से पूछे हु एम आई, मैं कौन हूं। जब तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पीछे हैं, नाकाम है? क्योंकि उन्हें पता ही मैं कौन हूं। अपने साथ वाले से पूछे हु एम आई। चंद मिनट मैं यहां रुकूंगा, सोचे कौन है आप, हु आर यू, कौन है। अगर आज कोई आपसे सवाल पूछे कौन है आप, जब तक आपको इस कौन का जवाब नहीं पूछा कि आप कौन है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आपकी फैमिली प्रोग्रेस नहीं कर सकती, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता, जब तक आपको पता नहीं आप कौन है। पहला पॉइंट हु आर यू, कौन है आप। जब तक आपको ये पहचान नहीं है, आप चर्च में बैठे हुए आपको ये नहीं आंसर पता मैं कौन, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आई एम बाइबल में से देखेंगे, आपको इस सवाल का जवाब जानना है खुदा के कलाम से, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब तक आपको पता नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है, और आज खुदा का कलाम आपको अपनी पहचान बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हवाला पढ़ेंगे पास्टर के साथ, गिनती 13 बाब 23 से 33। माइक ले लो, गिनती 13 बाब 23 से 33। यस, गिनती 13 बाब 23 से 33। Who am I? कौन हूं मैं? रेफरेंस नोट करते जाए आज के। और ये जस्ट आज का मैसेज नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये समझे पूरे ईयर का आपको मैं प्लान दे रहा हूं कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है। 2015 में 2015 में ऑलरेडी मेरे डैडी ने हमें बात बता दी। ये मेरी डायरी देख लें, 6 सितंबर 2015
6 सितंबर ऑलरेडी 5 साल पहले उन्होंने इस ईयर के बारे में बताया था, गाइड किया था इस तरह 2021 में जब लोग एंटर होंगे तो वो कैसे उनको लेकर चलना है। हमें रेडी है सब लोग? ओके, पढ़िएगा। यस, गिनती 13 बाब 23 से 33 10 आयतें। और वो वादी इसकार में पहुंचे, वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इस्राएलियों ने वहां से काटा था, उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमात के पास दस्ते फरान के कादेश में आई, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर पढ़ते हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और बसीरदार हैं। और हमने बनी अना को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं, और हद्दी और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुद्र के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाथ दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर हैं। और हम वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। आमीन। ग्रासहॉपर आइडेंटिटी क्या दे रहे हैं वो खुद को कि हम घास के क्या है घास के। उसी बात में बोले आपकी मुझे इन्वॉल्वमेंट है, क्या उन्होंने कहा अपने आप को? किसी ने उनको नहीं कहा कि यू आर द ग्रासहॉपर, कि तुम घास के टिड्डे हो। वो खुद को पहचान दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। आज बिलीवर्स, आज कोई आपको नाम नहीं दे रहा, आप खुद को कह रहे हैं ओ असी माड़े हैं, असी गरीब हैं, साढ़े को तलीम नहीं है, साढ़े को ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। किसी ने नहीं कहा, आप खुद को नाम दे रहे हैं। जो भी आपका पहला टेस्ट लिया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सारे जानवर ले आया और उसका एग्जाम लिया। फरिश्ते बैठे थे, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार वहां मौजूद थे। आदम का टेस्ट हो रहा है, अभी हवा नहीं है, देखा जा रहा है। वो तमाम एनिमल्स को नाम दे रहा है, और उसने कहा एक्सीलेंट, तूने टेस्ट पास किया है, यू हैव गिवन देम नेम, यही नाम मैंने ऑलरेडी दिए हैं। जैसे मैं टेस्ट कर रहा था कि मेरी स्पिरिट जो तेरे अंदर डाली है वो फंक्शन कर रही है या नहीं, जो सॉफ्टवेयर, जो रूह अपनी मैंने तेरे अंदर डाली है, या तेरे अंदर भी वैसी काम कर रही है या डिफरेंट है, वो पास हो गया। हालेलुया। आपके अंदर भी सेम रूह है जो आदम के अंदर है, लेकिन आप अपनी चीजों को, सिचुएशन को नेगेटिव नाम दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 12 जासूस चुने हैं और उन्हें भेजा है कि जाओ जाकर प्रॉमिस लैंड को लेकर आओ। लैंड देखी बड़ी खूबसूरत, और यहां एक डिफरेंस देखें, बुड़बुड़ाने से सफर लंबा होता है। अपने साथ वाले को क्या, बुड़बुड़ाने से सफर लंबा होता है। ये 12 जासूस, हर एक कबीले का एक एक लीडर भेजा गया प्रॉमिस लैंड के अंदर, और जब वो गए उन्होंने अंगूर का गुच्छा लिया, अनार ली, अंजीर ली,
اور بڑے خوش ہوئے. لیکن جب 12 کو دیکھ کر گھبرا گئے, اپنے سے اونچے قداور لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئے, اور صرف یشوع اور کالب پازیٹیو بولنے لگے, مثبت سوچنے لگے, اور نے کہا وی آر ایبل, ہم اس قابل ہیں, وی آر ویل ایبل ٹو پوزیس دی لینڈ, ہم بالکل اس قابل ہیں کہ زمین پر قبضہ کر لیں. لیکن باقی 10 منفی بولنے لگے. آج بھی کراؤڈ میجورٹی نیگیٹو بولتی ہے, نیگیٹو بولتی ہے. ایون آپ کی کمپنی میں میجورٹی آف پیپل اسپیک آلویز اسپیک نیگیٹو. آپ کی دوستی میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے خاندان میں, آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے نیبرہڈ میں میجورٹی ول آلویز اسپیک نیگیٹو, ہمیشہ منفی بولے گی. یہاں پر دیکھ لیں بائبل ٹائم پر بھی لیڈر چنے گئے, لوکل لوگ نہیں, ہر قبیلے کا سورما چنا گیا ہے. لیکن جب وہ جائنٹس کو دیکھ رہے ہیں, پرابلمز کو دیکھ رہے ہیں, نیگیٹو بول رہے ہیں, انہیں وہ پرومس بھول گیا, وہ پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں. خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے, اور آدم ذات نے جو وعدہ کر کے مکر جائے, اس نے کہا تھا کہ تم زمین پر قبضہ کرو گے, وہ اس پرومس کو بھول گئے. خدا کی دی ہوئی زبان کو, خدا کے دیے ہوئے وعدے کو بھول گئے کہ کیسے وہ پرابلم دیکھنا شروع ہو گئے. میں آپ کو ایک مسٹری بتاؤں, جو پلیس خدا نے آپ کے لیے پریپیئر کی ہے, آپ کے لیے تیار کی ہے, کسی اور کی بھی اس پر نظر ہے. جو بیوی آپ کے لیے تیار کی ہے, کسی اور کی بھی اس پر نظر ہے. جو شوہر آپ کے لیے تیار کیا ہے, کسی اور کی بھی اس پر نظر ہے. جو نوکری, جاب, بزنس خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, کسی اور کی بھی اس پر نظر ہے. جو گاڑی آپ کے لیے ہے, کسی اور کی بھی اس پر نظر ہے. ہاللیلویا. جو میرڈ لوگ ہیں, میرڈ وومن ہیں, وہ بہتر جانتی ہیں کہ ان کے شوہر پر کسی اور لیڈی کی بھی نظر ہے. ٹھیک یہاں پر پرومس لینڈ ان کے لیے تھی, وعدے کی سرزمین ان کے لیے تھی, لیکن جباروں کی اس پر نظر ہی نہیں تھی. وہ قبضہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے, گھر بنائے ہوئے تھے, لیکن خدا نے کہا وہ وعدے کی سرزمین میں تمہیں دوں. ہاللیلویا. آج کوئی آپ کی کمپنی پر بیٹھا ہوا ہے, آج کوئی آپ کے برانڈ پر بیٹھا ہوا ہے, آج کوئی آپ کے نام کی گاڑی سوار کر رہا ہے, بہت جلد وہ آپ کو ہینڈ اوور کرنے والا ہے. لیکن کن کو ہینڈ اوور ہوتی ہے؟ جن کے اندر جرأت ہو. اس سے پہلے میرے ڈیڈ کے پاس جیٹ نہیں تھا, چھوٹا سا ہیلی کاپٹر تھا. اس کے بعد انہوں نے اس سے چھوٹا پیارا لیا, اور ایک دن دعا میں گئے. خدا نے کہا کینیڈا کا ایک بزنس مین ہے, اس کے پاس جیٹس کا شو روم ہے, جہازوں کا شو روم, سائیکلوں کا نہیں, موٹر سائیکلوں کا شو روم نہیں, رکشوں کا نہیں, جہازوں کا شو روم ہے. اور جو فیملی کے لیے جیٹ یوز کر رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے, وہ تیرا ہے. خدا نے اس بندے کا نام دیا کینیڈی فیملی. کینیڈا کے اندر گیا, ایڈریس نمبر خدا نے پریئر کے اندر دیا, خدا نے اماؤنٹ بتائی, جا کر ڈیمانڈ کرنی ہے, چیلنج کرنا, میرا جیٹ مل دو. وہاں گئے, مسٹر کینیڈی میرے ڈیڈی کو جہازوں کے شو روم میں لے گیا. ڈیڈی بتاتا ہے 250 جہاز اس بندے کے پاس, ایک نہیں 250 گاڑیاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس, 250 سائیکلیں نہیں ہیں, 250 رکشے نہیں ہیں, 250 جہاز ایک سے بڑھ کر ایک دکھائے جا رہے ہیں. ڈیڈی نے کہا یہ ماڈل ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہاں یہ ماڈل ہے, اور یہ میں اپنی فیملی کے لیے یوز کر رہا ہوں, لیٹسٹ ماڈل ہے. اس نے کہا مجھے جہازوں کا پتہ نہیں, ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں, مجھے بھی پتا, پر مجھے پریئر کے اندر میرے باس نے, میرے گاڈ نے مجھے بتایا یہ لینا ہے. اس نے کہا سوری یہ نہیں میں دے سکتا. اس نے کہا اوکے نو پرابلم, میں ادھر ہوں کینیڈا میں, آپ مجھے کال کرو کہ میرا نمبر لے لو. ڈیڈی دوبارہ گئے ہوٹل روم میں, ساری رات دعا کی, خداوند وہ بندہ میرا جیٹ نہیں دے رہا, ہاللیلویا, بندہ میرا جیٹ نہیں دے رہا, اپنی فیملی کے لیے یوز کر رہا, میں نے اپنی فیملی کے لیے یوز کر رہا. پوزیس دی لینڈ. کوئی جائنٹ آپ کے جیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں آپ لے نہیں سکتے. رات کو دعا کی, صبح اس بندے نے ناشتہ ختم ہوا, 8 AM مارننگ کال کی, مسٹر مغیرہ پلیز کم اینڈ وزٹ می اگین. لاسٹ نائٹ آئی کوڈ ناٹ سلیپ. ساری رات تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں رہا اور مجھے بے چینی لگی ہوئی ہے, میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگر میں نے تمہیں جہاز نہ دیا. اس نے کہا واقعی ہو جائے گا, بلاؤ مجھے. گئے ہیں, انہوں نے کہا یہ پیمنٹ ہے. اس نے کہا یہ بہت چھوٹی ہے, یہ تو چھوٹا موٹا تیارہ آئے گا. اس نے کہا نو,
मेरे बॉस ने कहा यही है, वरना हार्ट अटैक लेना या ये जेट लेना, उसने जेट ले लो। हालेलुया, हालेलुया। इवन अपना पायलट दिया उसने, इवन अपना पायलट दिया कि इसको तंजानिया छोड़ कर आओ। फिर डैडी ने वैकेंसी अनाउंस की कि मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले विद्यालय को चलाने के लिए पायलट दरकार है। तो साउथ अफ्रीका से एक गोरा वो उनका पायलट चला, उसको हायर कर रहे हैं। हालेलुया। कोई आपके जेट पर बैठा हो, आपको पता ही नहीं, जब तक आपका बॉस से, लॉर्ड जीसस से कनेक्शन नहीं, अपने सेवियर से, आपको पता ही नहीं मेरा हिस्सा कौन सा है। मैं भी आपके सामने तो आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं है। आपके सामने तो आपके प्लॉट पर कब्जा करके बैठा, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। तो खुदावन ने बताया कि वो जगह तुम्हारी है, लेकिन जब्बार को देखकर वो घबरा गए, जब्बारों को देखकर वो घबरा गए। आपने घबराना नहीं है अगर आप अपनी जगह को लेना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यहां पर बात आती है पहचान की। उन्हें अपनी पहचान भूल गई, क्या हम कौन है, उन्हें भूल गया कि हम इब्राहिम की औलाद है, इसहाक याकूब की नस्ल से हैं, वादे के फर्जंद हैं। जो हम पर बरकत करेगा बरकत होगी, लानत करेगा लानत होगी। वो सारा कलाम भूल गए और वो जब्बारों को देखकर वो परेशान हो गए। आप भी ठीक इन 10 कबीलों के लीडर्स की तरह हैं, जब मुश्किल को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, बेरोजगारी आ गई, हालात खराब हो गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हालेलुया। मेरा एक वर्कर है, उसका नाम नहीं लूंगा, जब ये कोरोना चला उसने रात को ख्वाब देखा। खुदा हर ख्वाब नहीं देता, हर ख्वाब का देने वाला खुदा नहीं है। कुछ ख्वाब आपकी डेली मसरूफियात से आते हैं। वाइस की किताब में सुलेमान कह रहा है कि डेली मसरूफियात, कसरत, काम की ज्यादती की वजह से कुछ ख्वाब आते हैं। दूसरे किस्म के ख्वाब अबलीस लेकर आता है। हम देखते हैं अय्यूब 7वें बाब के अंदर, और कुछ ख्वाब खुदा देता है। वो मेरे पास आया, बोला डैडी मुझे लग रहा है आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे आप सैलरी देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन हो गया है, चर्च में लोग नहीं आ रहे, कलीसिया नहीं है, टाइट नहीं है, ऑफरिंग नहीं, कैसे आप मुझे सैलरी देंगे। वो परेशान हो गया। मैंने कहा कि मेरा सोर्स ये लोग नहीं है, मेरा सोर्स मेरा खुदावंद है। हालेलुया। सोर्स लोग नहीं है, मैंने कहा ये नजर आ रहे हैं, सोर्स लोग नहीं है, सोर्स खुदावंद है। मेरा सोर्स ड्राई नहीं हुआ, मेरा सोर्स वहां इकोनॉमी में काल नहीं है, वहां इकोनॉमी में लॉकडाउन नहीं है। हेवन की इकोनॉमी स्टेबल है और सोने की सड़कें हैं। बाकी तो दूर की बात, यहाँ तो खड्डे हैं, टूटी सड़कें हैं, विकास नहीं है। वहां सड़कें भी सोने की हैं, वहां की इकोनॉमी हाई है। मैंने सिर्फ खर्च किया। वो कहते हैं तो ये वैसे ही महसूस हो रहा है, लेकिन वाकई दिसंबर, नवंबर, सितंबर तक लॉकडाउन नहीं है, क्या होगा? लोग खुद परेशान। मैंने कहा नहीं, तुम इधर ही होगे, बिलीव मी, और आज वो मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। प्रैक्टिकल, मेरी बातें फिल्मी नहीं है, प्रैक्टिकल एविडेंस के साथ है, एविडेंस के साथ। ईमान आपको होना चाहिए। मुझे खुदावन पर बिलीव है। जिस दिन मैंने बाइबल पकड़ी थी, मैंने खुदावन को कहा था, लोग हो ना हो, मेंबर हो ना हो, कोई हो ना हो, मुझे भूखा नहीं रहना, ये मुझे गुर्बत से नफरत है। उसने कहा ओके, इट इज ओके, कैरी ऑन। हालेलुया। खुदा के साथ कोवेनेंट करके चले, कोवेनेंट करके। मेरी वाइफ बहुत सारे हादसात की गवाह है, बहुत सारी जगहों पर शैतान ने अटैक की, मैंने कहा नो, खुदावंद ऐसे करेगा, क्योंकि मेरा खुदा के साथ कोवेनेंट है, मेरे फादर का खुदावंद के साथ कोवेनेंट है। कोवेनेंट लोग खुदा को इवन चैलेंज कर सकते हैं मूसा की तरह कि खुदावंद मारना है लोगों को, मेरा नाम मिटा दे किताबे हयात से। खुदा ने कहा सॉरी, पहला बंदा है जिसने खुदा को तौबा करवाई है। लिखा गॉड रिपेंटेड, खुदावंद ने तौबा की कि नहीं, मैं लोगों को नहीं मारूंगा। उसने कहा अगर मारना है, गैर कौमें क्या कहेंगी कि तू इनको मिस्र से बियाबान में मारने के लिए लेकर आया है, इनकी कब्रें बनाने के लिए लाया है, इनको मारना है तो पहले मुझे मार, मुझे किस लिए चुना है? इतने सारे लोगों को निकाल कर लाया हूं, बियाबान में इनको मारना शुरू हो गया। उसने कहा खुदा मारना है तो पहले मुझे मार, वरना मेरा नाम किताबे आ सकता है। खुदा ने कहा सॉरी। लिखा गॉड रिपेंटेड, खुदावंद ने खुद तौबा की।
आमीन, जिनका खुदा के साथ कोवनेंट हो। आमीन। तो यहाँ वो अपनी पहचान भूल गए, खुद को खास के टिड्डे कहना शुरू हो गए। बात आप अपनी क्वालिफिकेशन देख रहे होते हैं, लगता है इस जॉब के मैं काबिल नहीं हूं, अपनी हाइट देख रहे होते, अपनी बॉडी देख रहे होते। नो, हम फजल के अंदर हैं। अब मैं नहीं, मसीह मेरी क्वालिफिकेशन, मसीह मेरे आगे है, और हम उस फजल की वजह से, उस फेवर की वजह से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आमीन। इसलिए पौल कह रहा है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। पहचान क्या है? आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। दुनिया के लोग दुआएं करते हैं, लेकिन कोई भी कौम, कोई भी रिलीजन उसे बाप नहीं कहता, हम उसे बाप कहते हैं। ऐ हमारे हमारा रिलेशन है, फेलोशिप नहीं है, रफाकत नहीं है, हमारा रिश्ता है उसके बेटे के खून की वजह से। हमें ले पालक उसने ले लिया है, गैर कौमों से, जेंटाइल से उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। अपनी शरीर पर बनाया है, अपनी रूह ले ली है, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन, और उसने हमें पावर दी है, अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है कि तुम सांप और बिच्छू को कुचल दो, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब हो। तो इतना कुछ इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद फिर आप क्यों लो है? आपकी सोच लो क्यों है? आप खुद को खास के टिड्डे क्यों देखते हैं? Who are you? आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक आप अपने बारे में अच्छी सोच नहीं रखेंगे। क्या कहते हैं आप खुद को? How do you see yourself? आप खुद को कैसे देखते हैं? बड़े मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने आप को बिलियनर ऑफ पाकिस्तान देखता हूँ, एशिया का टाइकॉन देखता हूँ। आमीन। हालेलुया। आपका एटीट्यूड तय करता है आपका ऑल्टीट्यूड, आपका रवैया डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे, कैसे डील करेंगे। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहते खुद को कैसे देखता है? हाउ डू यू सी योरसेल्फ? हालात आपको नाम ना दे, बीमारी आपको नाम ना दे, गुर्बत आपको नाम ना दे, बेरोजगारी आपको नाम ना दे, बल्कि आप हर हालात में बाइबल में लिखा, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich। खुदावंद का नबी अपने सहीफे में कह रहा है, अगर आप कमजोर बीमार हैं, कहे I am strong, पता भी है बीमार हैं, पर say let the weak say I am strong, let the poor say I am rich। गरीब कहे मैं अमीर हूं, कमजोर बीमार कहे मैं ताकतवर हूं। आप खुद को मुस्बत नाम दें। You are the production, you are the creation by the word of God। हालेलुया, हालेलुया। देखो मुझे समझ आ रही? अपने साथ वाले को क्या आइडेंटिटी खुद को दिया? इब्राहिम नाम था उसका, उसकी आइडेंटिटी थी, यानी ऐसा बाप जिसके पास औलाद नहीं है, खुदा ने एक डाला उसके नाम के इब्राहिम बना दिया, इब्राहिम से इब्राहिम बना दिया, यानी फादर ऑफ द नेशन, कौमों का बाप। जो उसको कहता था इब्राहिम, मतलब वो ऑलरेडी इसको कह रहा था कि तू कौमों का बाप है। उसके एक बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था, और उसे कौमों का बाप कहता, कौमों का बाप, कौमों का बाप। इवन जो उसका नाम लेता था उस पर बरकत आती है। उसकी आइडेंटिटी खुदा ने चेंज कर दी, पहचान चेंज कर दी। खुदा आपका नाम चेंज करता है, खुदा आपकी पहचान चेंज करता है। और इसके बाद आपको खुद को देखना है, आप खुद को क्या नाम दे रहे हैं, खुद को क्या कैसे देख रहे हैं, क्या आइडेंटिटी आपकी अपने माइंड में, आपकी क्या आइडेंटिटी है। हालेलुया। एक दिन मुझे किसी ने, जेलस शख्स था कोई, मुझे फेसबुक से ऐसे रैंडमली, वो बंदा था, 4000-5000 लोग आए थे, किसी ने ऐसे कॉल की मेरी शूटिंग देखकर, मुझे कहता आप पास्टर नहीं लगते, आप बिजनेसमैन लगते हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं हूं। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? पास्टर फटी जुराबे, खुली सी पैंट पहनी हो, लंबी सी टाई लगाई हो, और सिलवटों वाली कॉलर मैले हो, आधे कॉलर फटे हो, ऐसे पास्टर होते हैं? ये खुदा को रिप्रेजेंट करने वाले समझते हो? मैंने कहा कोर्ट में, अदालत में जाकर देखो,
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर देखो, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो नुमाइंदे हैं, जिन्हें एमपीएस, एमएनएस कहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पॉलिश करते हैं, कॉटन का सूट ऊपर शेरवानी पहन कर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने सूबे को, अपने लोगों को। अगर दुनिया के लोग नीली बत्ती गाड़ी पर लगाई होती है, आगे पीछे प्रोटोकॉल होते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप क्या चाहते हैं? लोगों का इमेज क्या है पाकिस्तान में कि पास्टर फटी जुराबें, फटी पैंट, पुराने जूते, पॉलिश भी ना हुए हो, कॉलर गला हुआ हो और आउटडेटेड चीजें इस्तेमाल करें, हैं? ये लाइफ है। आपकी सोच चेंज होनी चाहिए। आपका लीडर जिस तरह शाइन करेगा, वैसे ही आप शाइन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सोच दी है आपको कल्चर में। देखें, जो दुनिया के लोग हैं, उनको नहीं कभी किसी ने बात की कि ये फलां ने, एमएलए ने, मिनिस्टर ने, फलां ने ऐसे कपड़े पहने, इतने महंगे पहने हैं, कोट 20,000 का पहना, 30,000 का पहना, उसका नहीं कभी चेक किया। वो पास्टर पहले आपको तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका भेजा फ्राई हो गया, शैतान ने आपकी खोपड़ी फ्राई कर दी। हालेलुया। जमीन पर किसी ने केस कर दिया कि जी आप बहुत सारा फंड खा जाते हैं और इतना महंगा कोट पहनते हैं, इतनी महंगी गाड़ी ड्राइव करते हैं। उसने कहा आपने मुझे कितने दिए? जो अखबारी रिपोर्टर था, उसने कहा आपने कभी कितने दिए मेरे अकाउंट में? मुझे भी बताया, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूं। उसने कहा मैंने 1 रुपया दिया। फिर आप कौन है? हु आर यू? उसने कहा तुम कौन हो सवाल पूछने वाले? वो कोर्ट में उसको पेश किया गया। जॉयस मायर पर केस किया, 3-4 जॉयल ऑस्टिन पैनी ने कहा मुझे बोल लेते। उन्होंने कहा ठीक है, जज के सामने। उसने कहा हु आर यू रिप्रेजेंटिंग? उसने कहा आई एम रिप्रेजेंटिंग यूएस गवर्नमेंट। उसने कहा मैं यूएसए की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसने कहा जज साहब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, मैं सवाल पूछता हूं। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, महंगी तरीन अमेरिका की गाड़ी है, हु इज पेइंग? उसने कहा जी टैक्स से चलती है। कौन टैक्स दे रहा है? अमेरिकन सिटीजन। आप महंगी गाड़ी यूज कर रहे हैं, हमारे टैक्स से। मैं भी यूएस का सिटीजन। उसने कहा मैं एग्री करता हूं। महंगे घर में रहते हैं, कौन बिल दे रहा है आपके? उसने कहा यूएस गवर्नमेंट, यूएस के जो लोग हैं उस टैक्स से आपके घर का बिल दे रहे हैं। आप जज की कुर्सी पर बैठे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसने कहा अमेरिका को। उसने कहा मेरी सैलरी आपसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब चुप कर गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा मेरा खुदा यीशु, मेरा शाफी, मेरा निजात दहिंदा सिर्फ अमेरिका का मालिक नहीं है, पूरी दुनिया का, चाइना से अलास्का तक का मालिक है। मेरी सैलरी आपसे ज्यादा होनी चाहिए, मेरी गाड़ी आपसे बड़ी होनी चाहिए, मेरा घर आपसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जज ने कहा यू आर फ्री। जज चला गया, वो सारे चुप कर गए। हालेलुया, हालेलुया। जमीन से बात करें, आपको पता होना चाहिए कि कैसे चलना है। उसे पता है मेरी पहचान क्या है। मैं एम्बेसडर हेवन से, हेवन का एम्बेसडर। तो जब तक आपको अपनी शिनाख्त नहीं पता, पहचान नहीं पता, आप आगे नहीं जा सकते। लोग बातें करेंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे। डोंट लिसन व्हाट पीपल से। वो ना सुने जो लोग कहते हैं, वो ना नाम दे खुद को जो लोग कहते हैं, वो नाम दे जो खुदावंद आपको कहते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं यू आर ब्लेस्ड। I again say you are blessed. Your family is blessed. Your body is blessed. Your account is blessed. क्या आप जाए वो जगह पर बरकत हो, आपके हाथ के काम पर बरकत हो, आपके अकाउंट पर बरकत हो, बैंक बैलेंस पर बरकत हो, जो काम करें उसको बरकत हो, जहाँ एंटर हो बरकत हो। आप लिखा यूसुफ की वजह से, यूसुफ की वजह से उसके मालिक के घर में बरकत, याकूब की वजह से लाबन के घर में बरकत थी। मुझे पता है जिस घर में मुझे इनवाइट किया गया ऑलरेडी बरकत आ गई। मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे खुद की वैल्यू पता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको कोई इनवाइट करे, उसे जो जैसे भी तुमने ट्रीट किया ऑलरेडी ब्लेसिंग आ गई। पढ़ के लिखे बाइबल, लिखा लाबन की हर एक चीज पर बरकत थी, क्योंकि लाबन ने देखा कि याकूब के साथ खुदावंद है, खुदावंद याकूब के साथ है, और उसकी हर एक चीज पर बरकत थी, क्योंकि लाबन के घर में बरकत का जो जरिया है वो याकूब है। और इसी तरह पोतीफर उसके घर में जब यूसुफ गया, लिखा उसने नोटिस किया कि मेरी हर एक चीज बढ़ना शुरू हो गई है।
क्योंकि खुदावन यूसुफ के साथ। आमीन, हालेलुया। मुझे अपनी वैल्यू पता है, इसलिए हर जगह नहीं मैं जाता। कीमती चीजें हर जगह नहीं मिलती, लोकल चीजें हर जगह मिलती हैं, चीप चीजें हर जगह मिलती हैं, यूनिक चीजें खास जगह पर मिलती हैं। हालेलुया। मुझे पता है जिस घर में मैंने अपनी वैल्यू को इतना ऐड किया, जब मैं आपके घर में एंटर हूं आपका सीजन चेंज होना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। डिमांड करके, इवन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर डिमांड करके मेरे डैड को इनवाइट करते हैं। उनको पता है जब वो कंट्री में एंटर होंगे सीजन चेंज होगा। 2014 में मुगाबे ने, जिम्बाब्वे के मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने मेरे डैडी को बुलाया। उसने कहा इकोनॉमी जिम्बाब्वे की डाउन जा रही है, मैन ऑफ गॉड मैं आपको बुलाना चाहता हूं, जस्ट आप विजिट करें पार्लियामेंट हाउस मुगाबे। आम बंदा नहीं, 4 PhD होल्डर, दुनिया का सबसे एजुकेटेड वजीर आजम, डैडी को बुलाया। डैडी गए जिम्बाब्वे के अंदर, जिम्बाब्वे जट से उतरे, नील डाउन हुए और जिम्बाब्वे की मट्टी को चूमा और आंसू आए। उसने कहा आज से मैं जिम्बाब्वे तुझे ब्लेस करता हूं, इकोनॉमी उनकी शिफ्ट हो गई है। हालेलुया। आपको क्या वैल्यू मैन ऑफ गॉड की? जिनका कनेक्शन खुदा के साथ होता है वो हेवन को कंट्रोल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से मैं डिक्लेयर करता हूं तरक्की करें, आप तरक्की करें यीशु के नाम से। आप खुद को खुदा की नजर से देखें। अपने साथ वाले को क्या दें, जरा 3 दफा उसके कंधे पर थप्पड़ी मारे, बोले एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। अपने आप को रिश्तेदारों की आंखों से न देखो, दुश्मनों की आंखों से न देखो, जेलस लोगों की आंखों से न देखो, अपने आप को खुदा की आंख से देखो, कलाम की रूह से देखो। Who are you? कलाम तेरे बारे में क्या कहता है, खुदा तेरे बारे में क्या कहता है। ये मत सुन कि लोग क्या कहते हैं, ये देख के खुदा क्या कहते हैं। जोरदार लगेगा। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। या 10 आगे बढ़ने के काबिल नहीं थे, 2 खुदा का कलाम था, वादे की जमीन पर जाओ, लेकिन 10 बढ़ने के काबिल नहीं थे क्योंकि उनको अपनी क्या नहीं थी, पहचान नहीं। कितनों को अपनी पहचान आई है? Who are you? Who are you? मैं किसी पूछूं आप कौन है? हालेलुया। कोई खड़ा होकर जवाब दे। Who are you? कौन है? हाजी साहब कौन? हालेलुया। अपनी पहचान सही। आपको क्या समझ आई? खुदावन की इमेज पर बने। नंबर 1 किस पे की इमेज पर बने? और खुदावन की रूह किसके अंदर है? आपके अंदर है। नंबर 3 खुदावन ने आपको सांप और बिच्छुओं को कुचलने के लिए क्या किया? जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, हिरन भले कितनी खूबसूरत हो, तोते, मोर, कबूतर कितने खूबसूरत हो, दुनिया की खूबसूरत नदियां, झरने, चश्मे, माउंटेन, मरी के पहाड़, वादिये कलाम, वादिये कलाश, उन्जा, जहां मर्जी चले जाएं, कोई भी चीज खुदा की शबीह पर नहीं है। आप यू आर ओनली वन द मास्टरपीस। आप खुदा की शबीह पर, आपने लिखा आप यू, खुदा ने किसी मट्टी को, जमीन को, चश्मे को ये वैल्यू नहीं दी कि अपनी शबीह पर बनाए, आपको उसने शबीह से बनाया। दूसरा डिफरेंस क्या है? आपकी आइडेंटिटी में बताऊं, बाकी चीजें खुदा के कलमे से, कलाम से, वर्ड से बनी है, आपको खुदा ने फेलोशिप से बनाया। आओ हम आदम को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। आपको कलाम से नहीं बनाया, आपको फेलोशिप से बनाया, रिलेशनशिप से बनाया, यूनिटी से बनाया, बाप, बेटे और रूह कुदुस ने मिलकर। बाकी चीजें यहोवा खुदा ने कही हैं, रूह कुदुस ने बना दी। यीशु की इन्वॉल्वमेंट नहीं, लिखा जो कुछ बना, जो कुछ बनाया गया इसके लिए बनाया गया, जीसस क्राइस्ट के लिए, उसने अपने बेटे के लिए बनाया तमाम चीजें। लेकिन जब आपको बनाया जा रहा है उसमें जीसस भी इन्वॉल्व है। आप सिर्फ लफ्जों से नहीं बने, आप फादर से बने। आप जब नहीं है बाप बेटा उनको उसमें उनकी यूनिटी में, आपकी क्रिएशन डिफरेंट है। उसने कहा दिन हो गया, रात हो जाए, समंदर के ऊपर के पानी, नीचे के पानी से मिलाओगे, हर चीजें कलमे से बनी है, पर आप फेलोशिप से, रिलेशनशिप से बने।
आमीन आमीन। समझ नहीं आया आपको? अपने साथ वाले को कहें मेरी आइडेंटिटी हायर। आमीन। आवर सीक्रेट आइडेंटिटी। आमीन आमीन। अपनी आइडेंटिटी चेक करनी है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी में डीमन हो आप जाकर खड़े हो, आप जब कमांड करेंगे वो आप उसको कहना नील डाउन नील डाउन और नील डाउन हेड डाउन, सब नीचे कर लेंगे। गेट आउट। आपको अपनी आइडेंटिटी नजर आएगी, आप खुद को नहीं देख सकते, वो आपके बैच देख रही है, आपके शोल्डर पर बिल्ले देख रही है। आमीन। यहाँ एक केस आया 3-4 साल पहले, मैं इस जगह पर बैठा था, कुर्सी पर टांग रखा, एक बदरू थी नौजवान के अंदर, और वो उड़ने वाला सांप था, जुबान लंबी निकालता था, जंपे लगाता था, ये ऊंची ऊंची जहाँ बलून्स लगे हुए, कितनी ऊंची लड़का जंपे लगाता। वो पूरे लाहौर के पादरियों के पास गए, नहीं आया, उसके फादर मेरे पास गया, बाबू वाला से एंटर हुए, यहाँ वो जंपे लगाना शुरू हो गया, मुझे देखते ही चीखे मारना शुरू हो गया, सांप जंपे लगा रहा है, डरा रहा है, लंबी जुबान। मैं टांग पर टांग रखकर कूल बैठा रहा, मैंने उसको एक ही दफा उंगली दी, मैंने कहा गेट आउट इन जीसस नेम, और वहीं पर वो गिर गया। उसके बाद उसका बाप मेरे पैरों में बैठ गया, कहता मैंने देखे हैं बड़े बड़े लोग टच कर रहे हैं, बड़े बाजू में रोड़ी बलों में, इसके बाल उखाड़े, बलों में इसको चपेड़े मारी, आपने जस्ट कमांड किया। मैंने कहा मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, वो आया। हालेलुया हालेलुया। खाने के अंदर जो मुलाजिम होते हैं ना वो चीखे मारते हैं, जो एसएचओ होता है, जो डीएसपी होता है, जो उसके ऊपर एसएसपी होता है, और उसके ऊपर जो डीआईजी होता है और फिर आईजी होता है, उनको चीखे मारने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं यस डू सारा कुछ। आईजी अगर आज एक इंटरव्यू पूरा पंजाब भेज देगा, हालेलुया हालेलुया। लेवल में फर्क है, हालेलुया। आप पर जनरल भी दुआ कर रहे, आपको लग रहा था आप पादरी दुआ कर रहे, इसलिए आपको असर नहीं है, क्योंकि आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। मैं अपनी वाइफ को अक्सर कहता हूँ, जब डैडी ने क्या किया, इट इज डन। हालेलुया। देयर आर लेवल्स एंड देयर आर लेवल्स। ब्लेसिंग के लेवल है, अनॉइंटिंग के लेवल है, जॉय के लेवल है। आमीन। रूथ खेत में से नौकरों का बचा हुआ अनाज चुन रही थी, और वो समझ ली कि ये मेरे लिए बरकत है। नौकरों का बचा हुआ, बोयज ने कह दिया कि ये जो औरत है मुआबी, इसको रोकना ना, इसको छिड़कना ना, ये अनाज इसके लिए छोड़ देना। और वो चुप अनाज चुग रही थी, नौकरों का बचा हुआ, और वो समझ रही थी बरकत है, बरकत के लेवल। आप 2 टाइम रोटी खा लेते हैं, 3 टाइम सालन बना लेते हैं, नहीं आंटी आप कहते हैं बरकत है, राइट, यू आर राइट, पर बरकत के लेवल। कुछ लोगों की टेबल पर 17 खाने होते हैं, 400 डिशें होती हैं, हालेलुया। बरकत के लेवल है और बरकत के लेवल है, हालेलुया। वही हफ्ता, वही मंथ खुदा ने उसके लेवल को चेंज कर दिया। एक दिन वो नौकरों का बचा हुआ चुन रही थी, अगले दिन वो बग्गी में बैठ कर आई और वो मार कर मर गया। खुदा आपकी स्टोरी को चेंज करने वाला है, खुदा आपकी स्टोरी को चेंज करने वाला है, खुदा आपकी कहानी को चेंज करने वाला है। आप ऊपर स्क्रीन में बैठे ये मत सोचे कि ये गाड़ी इसकी है, कहीं सीट खराब ना हो जाए, आपको नहीं पता एक दिन आप भी कंपनी के मालिक बन के कहानी चेंज करने वाले। अगले दिन वो बग्गी पर आई, सारे उसको सलूट कर रहे थे, मैडम 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 यस मैडम, और वो एक दिन पीछे झुक रही थी, बरकत के लेवल थे। एक दिन वो पीछे नौकरों का बचा हुआ चुन रही थी, और जब दोबारा दिन आया तो नौकर उसे सलूट कर रहे थे। वो खेतों की, जमीनों की, अनाज की, गंदम की, कपास की मालकिन बन गई। आमीन। खुदा आपके लिए वैसा करने वाला। आज जिस घर में आप रेंट पर हैं, आप में भी पूरी कॉलोनी खरीद लें, पूरी सोसाइटी खरीद लें, जिस गाड़ी में बैठे में भी कंपनी खरीद लें, हालेलुया। जिस होटल में खाना खाएं, बदतमीजी करें, आप होटल खरीद लें, स्टाफ चेंज कर दें। सोच रखे, बड़ी सोच रखे, हालेलुया। आपके में खलोती लत खरीद सके, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे डैडी अभी रिसेंटली किसी मुल्क में गए, मुझे स्टोरी शेयर कर रहे थे। वहां पर मेरे साथ तुर्की में शॉपिंग करने के लिए गए, तो उनका जेट लैंड हुआ, और जब वो आए तो इमिग्रेशन क्लियर कर रहे थे,
पासपोर्ट पर स्टाम्प लगाइए और आगे एक काउंटर होता है जहां तलाशी लेते हैं, बेल्ट उतार, जूता उतार, ये उतार, वो उतार। तो सबके अंदर जूते बेल्ट बूट उतारे। जब उनकी बारी आई उन्होंने उतारा ना जूता ना बेल्ट ना कुछ। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, ये क्या डिसऑनर है कि जूता बेल्ट आपको नहीं पता मैं कौन? उसने कहा मेरा जेट आपके एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, आपके कंट्री को मैं पैसे पे कर रहा हूँ अपने जेट, आप ये मेरे साथ इमिग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी आई एम गोइंग बैक। मैं कहा सॉरी सर आप पास हो सकते हैं। आमीन। एजेंट को पता थी, मतलब वो भी पल्लू की तरह अपने बैग जूते उतार लेते, उनको पता है आई एम द बॉस। हालेलुया। उसने कहा अगर नहीं रिस्पेक्ट नहीं पता मैं वापस जा रहा हूं अपने जेट में वापस, मैं आपके तुर्की शॉपिंग करना है, इवन आपके एयरपोर्ट को मैंने पे किया है अपना एक एक घंटे जहाज बनाने के लिए। हालेलुया। सिर्फ पैसा आने से बंदा अक्लमंद नहीं होता, अक्ल भी होनी चाहिए। उन्होंने बकायदा सॉरी की, पूरे स्टाफ में हलचल मच गई सीसी कैमरे में। उनके कौन है वो सॉरी आस्क सॉरी, उनके सॉरी सर वी डोंट नो, हमें नहीं पता था, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते, सबके बैग जूते उतराते, हमें नहीं पता आप कौन है। उसने कहा आई एम डॉनर, मेरा जेट वहां खड़ा हुआ है, ग्रेस एंड ग्लोरी इफाता। आमीन हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने साथ लोगों के लिए अपनी पहचान बतानी चाहिए, अपनी पहचान बतानी चाहिए। आमीन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप कितने, दूसरा पॉइंट सीखना चाहते हैं? कितने लोग आगे जाना चाहते हैं? सब लोग? ओके। दूसरा पॉइंट अगले दो मैं अगले संडे सुनाऊंगा, आज जस्ट एक और मैं ऐड करूंगा। आमीन। रेडी हैं? कितने रेडी हैं? कितने बोर हो रहे हो? कितने बरकत पा रहे हैं? जस्ट फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन। क्या है? प्रिपरेशन मतलब तैयारी। कोई भी शख्स आगे नहीं जा सकता जब तक उसने खुद को तैयार नहीं किया। तैयारी बहुत जरूरी है। आज जहां आप हैं ये आपकी माजी की तैयारी है। जिस लेवल पर आप खड़े हैं फाइनेंशियली, माली तौर पर, ये गुजरे हुए सालों की तैयारी है। जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं आपको आज उसके लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। अच्छा रिजल्ट दुआ से नहीं आता। यहाँ अक्सर बच्चे आते हैं, ठीक है दुआ मैं बिलीव करता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बच्चों का माइंड डल होता है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको भूल जाता है, क्वेश्चन भूल जाते हैं, आंसर भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। माइंड बच्चों को उठे बरकत देते सोचो, लेकिन